So, welcome back everyone, my dear students. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी डिड्यूस की पैरेललो सॉरी रेक्टेंगल की, है ना। सबसे पहला प्रॉपर्टी था दैट इज जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होंगे और जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। तो ये हम लोगों ने एक रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी हम लोगों ने वो एग्जांपल से डिड्यूस किया था। एक प्रॉब्लम हम लोगों ने कारपेंटर्स प्रॉब्लम से सॉल्व किया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग कारपेंटर प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किया और हम लोगों ने ये दो डिडक्शंस पे हम लोग आए, है ना। तो एक तो हम लोगों ने देखा दोनों का लेंथ इक्वल होगा डायगोनल्स का और दोनों आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट डिडक्शन हम देखते हैं, what are the angles between the diagonals। तो ये तो हमें पता चल गया डायगोनल्स आपस में इक्वल लेंथ के होंगे और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अब हमें ये पता करना है कि उन दोनों के बीच में एंगल्स क्या होगा, ये डायगोनल आपस में किस एंगल्स पे कट कर रहे हैं। So what will be the angle between these diagonals while they are bisecting each others। लेंथ वाइज तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं लेकिन इनके बीच में एंगल क्या फॉर्म हो रहा है तो वो देखते हैं हम लोग। लेट अस चेक व्हाट क्वाड्रिलेटरल वी गेट इफ वी ड्रॉ टू डायगोनल्स such that their length are equal, they bisect each other and have an arbitrary angle say 60 डिग्री। तो जो दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रूव किया उसको तो हम लोग कंसिडर कर ही रहे हैं, दैट इज quadrilateral is formed with the diagonals that are equal in length and bisecting each others, and we are taking an arbitrary angle 60 degree between the at the point of intersection of the diagonals. Can you find remaining angles? Now you have to find remaining angle. So let us move ahead. So this was the quadrilateral ABCD with diagonals bisecting each other and point of intersection. One angle we have found as 60 degree, or we have assumed or that one angle is 60 degree. So since BD is a straight line and one angle is 60 degrees, so the sum of angles on a straight line is 180 degrees. So this angle is going to be 120 degree. Okay. Now when two lines intersect each others, the opposite angles are equal. So since this is 120 degree, this is also going to be 120 degree, as these are opposite angles, and this angle is 60 degrees, so this angle will be also be equal to 60 degree. We find remaining angles between diagonals using our understanding of vertically opposite angles and linear pairs. The sum of linear pairs is 180 degree. Okay, so we just found out the angles. Now we have to actually prove that this is a rectangle. The figure is ABCD is a rectangle. So to prove it to be a rectangle, actually we have to prove that the angles ABCD of this quadrilateral are equal and all of them is equal to 90 degree. So in triangle AOB, A, O and B, in triangle AOB, since OA is equal to OB, the angle opposite to them say A. So we have to, since this is going to be an isosceles triangle, as these
लेंथ OA एंड OB आर इक्वल, तो इस एंगल, ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल भी होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ये। तो अगर हम उसको A मान लेते हैं, है ना, तो A plus 60 सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 2A is 120 डिग्री एंड A is equal to 60 डिग्री। तो हमें ये A मिल गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ट्रायंगल। नेक्स्ट ट्रायंगल मतलब हम इस ट्रायंगल पे आएंगे, है ना, ट्रायंगल AOD पर हम आते हैं। AOD पर आएंगे तो अगर हम इस एंगल को B मानते हैं, कंसिडरिंग दिस एंगल B, so same, this is base of the triangle and the two sides are equal, so these two angles will be equal. It will be the case of isosceles triangle. Therefore we can say that angle B plus 120 degree is going to be 180 degree. Therefore 2B is equal to 60 degree, and therefore B is going to be 30 degree. So measure of angle B is 30 degree, measure of angle A is 60 degree. Now this is 30 degree, this is 60 degree. So similarly we will 60 degree, and this is going to be also 60 degree. This is also going to be 60 degree. 120 degree, so this is going to be 30 degree and 30 degree. So ultimately what we have found that this angle B is 90 degree, angle A is 60 plus 30, that is 90 degree, and angle D is 60 plus 30 90 degree, and angle C is 60 plus 30 is 90 degree. So angle A is equal to angle B, angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D, and all of them are equal to 90 degree. 90 degree. Therefore we can say that this is a rectangle. This is going to be rectangle since all angle are 90 degree. नेक्स्ट, है ना, जो यही चीज यहाँ पे बताया हुआ है, डिफरेंट वैल्यूज निकाल के, और 60 डिग्री 30 डिग्री। कैन we now identify which type of quadrilateral ABCD is? तो ABCD किस टाइप का quadrilateral है, क्या ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? Yes, we can identify that. Notice that its angle and adds up to 90 degree. What can we say about its sides? तो sides के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? साइड्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? तो साइड्स भी हम देखेंगे, वी विल यूज कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी टू प्रूव दैट द साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। तो आप इसमें देखो, these angles, you, since they are opposite to each other, they are equal opposite angles. These sides are equal as diagonals are bisecting each other. So we can say by property of congruency that triangle AOB is congruent to triangle AOD, is congruent to triangle COD. So this triangle and this triangle is congruent, and similarly this triangle AOD is congruent to COB.
By which property? By side angle side. So we can say that AB is equal to CD, AB is equal to CD, and AD is equal to BC, or AD is equal to CB, since they are corresponding part of congruent triangles, just by congruency. Thus, opposite sides are also equal. Therefore, ABCD is a rectangle since it satisfied definition of rectangle. तो जो हम लोगों ने definition rectangle का देखा था, that all angles should be 90 degree and sum of all opposite sides should be equal in length. So that property is being satisfied. Will ABCD remain a rectangle if angle between diagonals are changed? तो अभी तो जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसमें हम लोगों ने एक कोई एंगल 60 माना और हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट प्रॉपर्टी से फिर डिड्यूस करके हमने निकाला कि उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हो रहे हैं और जो एंगल्स है उस क्वाड्रिलेटरल का वो 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए वो एक रेक्टेंगल कहलाएगा. लेकिन कैन वी जनरलाइज दिस? क्या ये हम जनरलाइज कर सकते हैं? ये तो हम लोगों ने किसी खास एंगल के लिए निकाला 60 डिग्री के लिए, लेकिन कैन वी जनरलाइज दिस फॉर एनी डिग्री? तो उसके लिए क्या करना होगा? टेक वन ऑफ द एंगल बिटवीन डायगोनल्स बी एक्स. किसी एक जो उनके डायगोनल्स के बीच में जो एंगल आ रहा है उसको हम कोई एंगल ले लेते हैं एक्स. अब हम इस एक्स के टर्म में एक एंगल तो हमने एक्स ले लिया, एक्स इज अ वेरिएबल. तो हम देखेंगे जब हम एंगल को x ले रहे हैं तो ए बी सी डी एंगल की वैल्यू क्या आ रही है. तो सिंपल है, लेट्स मूव अहेड. अभी देखो, हमने जब इस एंगल को x लिया है तो BD लाइन एक स्ट्रेट लाइन है ना. तो दूसरा एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल क्या होगा? अगर हम BD को एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर रहे हैं तो लीनियर पेयर के हिसाब से दिस एंगल इज गोइंग टू बी 180 माइनस एक्स. एक्स के अपोजिट एंगल जो होगा वो एक्स होगा अपोजिट एंगल, और 180 डिग्री माइनस एक्स के अपोजिट एंगल जो होगा वो 180 डिग्री माइनस एक्स होगा. एनी कंफ्यूजन इन दिस? आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंफ्यूजन. नाउ कैन यू फाइंड अदर एंगल्स, है ना. तो अभी देखो, हम लोगों को पता है जो ये ट्रायंगल है ए, अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट O है तो AOB is a isosceles triangle. Triangle AOB is an isosceles triangle. Okay, this we know. Can we denote measures of both the angle by A? तो हमने इस दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये और ये एंगल इक्वल होंगे since this is isosceles triangle. तो we can say A plus A plus X, A plus A plus X, sum of internal angle of a triangle is equal to 180 degree, है ना. So 2A is going to be 180 minus x, so A is going to be 90 minus x by 2. We divide both sides by 2. So we have found angle A in terms of x. So A is 90 minus x by 2. Similarly, this is an isosceles triangle, that is angle triangle AOD. So B plus 180 minus x by 2, B plus this angle is going to be 180 degree, since this is sum of internal angle of a triangle. So by simplifying this equation, 2B is equal to 180 minus x. So B is going to be x by 2. Therefore we found A to be 90 minus x by 2 and B is x by 2. So यहाँ सब जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे, A का 90 minus x by 2 और B का x by 2. तो यहाँ पे हो गया है ना, ऐसा लिख दिया हम लोगों ने. A और B की वैल्यू ये सब जगह हमने फिल कर दी, है ना. बेसिकली यहाँ भी है ना, ये सब जगह हमने फिल कर दी, है ना.
एक्चुअल में ये क्या हो रहा था, आपको शायद कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं बना देता हूँ। ये एंगल ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी ए, दिस एंगल इज गोइंग टू बी ए, दिस इज B and this is B। ऊपर हम लोगों ने देखा था सेम थिंग। है ना, यहाँ पे आपने देखा था। है ना, तो a प्लस बी की वैल्यू हमें मिल गई। a की वैल्यू 90 माइनस एक्स बाई टू और b की वैल्यू x बाई टू। सो ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज a प्लस बी। है ना, a प्लस बी इंडिविजुअली ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, अगर एक एंगल इस क्वाड्रिलेटरल का a प्लस बी हो गया तो बाकी सब भी a प्लस बी होगा, क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि दिस इज अ रेक्टेंगल इज बीइंग फॉर्म। है ना, हम बस ये देख रहे हैं कि अगर एक एंगल को वैल्यू x कर रहे हैं तो उसको हम जनरलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं। सो सम ऑफ एल a प्लस बी अपने को कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। दस ऑल फोर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 90 डिग्री। है ना, तो जब सारे एंगल 90 डिग्री अपने हो रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू बी अ rectangle. What can we say about ABCD? ABCD, that is opposite angle, and AD and BC. So एंगल्स आपस में आप देखेंगे, एंगल्स ये एंगल इक्वल हो गया, ये ये एंगल ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दो साइड्स इक्वल्स हैं। तो हम कॉन्ग्रुएंसी का फिर से यूज करेंगे। वी कैन से दैट triangle AOB is congruent to triangle COD and triangle AOD is congruent to triangle COB। है ना, तो ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, इसलिए अपोजिट साइड्स, इसलिए AB जो है इज इक्वल टू CD, एंड इस कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं AD इज इक्वल टू CB। देयरफॉर अपोजिट्स opposite sides are being equal. So therefore no matter what angle between diagonals are, diagonals के बीच में एंगल कुछ भी थे, x हमने माना था, diagonals x माना था, but if diagonals are equals and they bisect each other, then angle of quadrilateral form are 90 degree each। है ना, तो अगर डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे और बाइसेक्ट कर रहे होंगे, अगर हम ये मान के चल रहे हैं, तो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा उनसे उनका एंगल 90 डिग्री होगा, उनके हर एक एंगल का मेजर 90 डिग्री होगा और अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। दैट इज द क्वाड्रिलेटरल इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल। नाउ वी नो हाउ वुडन स्ट्रिप हैव टू बी पुट टुगेदर टू फॉर्म वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो अब हमें पता चल गया वो वुडन स्ट्रिप्स को कैसे रखना चाहिए ताकि वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करे। दैट दे शुड बी इक्वल एंड कनेक्टेड एट देयर मिड पॉइंट्स। है ना, एक तो उनको इक्वल होना पड़ेगा और उन दोनों को आपस में मिड पॉइंट पे कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद उनको उन दोनों जो अपने डायगोनल्स बीच में उनके पास कोई सा भी उनके बीच में कोई सा भी एंगल बने, वो एक रेक्टेंगल जरूर फॉर्म करेंगे। दिस मेथड इज एक्चुअली यूज्ड इन प्रैक्टिस टू मेक रेक्टेंगल्स। है ना, तो एक्चुअल में इसी मेथड का यूज करके कारपेंटर जो है रेक्टेंगुलर कुछ भी बनाना था, रेक्टेंगुलर टेबल, रेक्टेंगुलर फ्रेम, तो उसका ही यूज करके बनाते हैं। कारपेंटर इन यूरोप यूज दिस मेथड टू गेट रेक्टेंगुलर फ्रेम।
This is known that farmers in Mozambique, a country in Africa, Mozambique कहाँ है? अफ्रीका में, use this method for constructing their house to get base of house in a rectangular shape, है ना? तो वो घर बनाने के लिए भी इसी प्रोसेस का यूज करते हैं. The process of finding property. So actual में what we are doing, we are in the process to find property. As we have been seeing from lower grades, property of geometric objects such as parallel lines, angles and triangle can be deduced through geometric reasoning. तो geometric reasoning के मदद से जो हमें ज्योमेट्री के बारे में पहले से पता है उनका हम इस्तेमाल करके हम कुछ प्रॉपर्टी को डिड्यूस करते हैं. We will continue to deduce property of specific type of quadrilateral in this chapter. तो इस चैप्टर में हम इसी का यूज करके, है ना, हम कुछ प्रॉपर्टी डिड्यूस करेंगे थ्रू ज्योमेट्रिकल रीजनिंग. Once we have deduced property of quadrilateral, it is good to verify it with real world quadrilaterals. तो आपने अभी जो quadrilateral की प्रॉपर्टी डिड्यूस की उसको रियल वर्ल्ड के साथ आपको वेरीफाई करना चाहिए. Either quadrilateral constructed on paper or simply a surface having shape of quadrilateral. तो आप कैसे डिड्यूस कर सकते हैं? सपोज कीजिए आपने अभी एक डिड्यूस किया कि प्रॉपर्टी डिड्यूस की कि अगर एक रेक्टेंगल है हमारे पास तो उसके डायगोनल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. इसको आप कैसे प्रूव करोगे? तो आप कुछ भी एक रेक्टेंगल ढूंढो. सबसे पहले आपके पास आपकी बुक होगी, आपके पास आपका टैबलेट होगा, है ना, टैब होगा, मोबाइल होगा. तो ये तो आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगल है, रियल में रेक्टेंगुलर है. कुछ नहीं तो आपके पास एक बुक का किसी आपके कॉपी का नोटबुक का पेज होगा, A4 शीट होगा, है ना, आपको पता है वो रेक्टेंगल है. तो जस्ट आप उसका डायगोनल ड्रॉ करो, उसको मेजर करो और ये आप फाइंड करो कि दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हो रहे हैं और दे बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, है ना. सो ये हो गया फिजिकल वर्ल्ड से अपने प्रॉपर्टी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको वेरीफाई कर रहे हो. If you are not able to figure out property using deduction, you could experiment by taking real world quadrilaterals and observe property through measurement. कई बार हम रियल वर्ल्ड में जो चीज़ है उस पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं या उनको ऑब्जर्व करते हैं तो हमको लगता है कि ये चीज़ बार बार सही आ रहा है. सपोज करो हमारे पास मैथमेटिकल ये रीजनिंग नहीं होती, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी जो हमारे पास जो हमारा दिमाग है, अगर सपोज करो हमारे पास हमें नहीं पता था ट्रायंगल रेक्टेंगल ये सब नहीं पता था, लेकिन हमारे पास शेप्स थे, रियल वर्ल्ड में शेप्स थे, तो हमने उसको मेज़र ऐसे ही मन किया, हमने मेज़र किया डायगोनल, हमने देखा कि ये चीज़ ये प्रॉपर्टी इसमें भी लग रही है, बुक में भी लग रही है, टेबल में भी रेक्टेंगुलर टेबल में भी लग रही है, रेक्टेंगुलर फ्रेम में भी लग रही है ना. तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ बार बार सही हो रही है ना. नोट दैट, तो हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो ऑब्जर्वेशन हमको बार बार सही लग रही है कि ये हो रहा है. नोट दैट दीज ऑब्जर्वेशन गिव्स यूजफुल इंसाइट्स अबाउट प्रॉपर्टी. तो हमको लग रहा है शायद ये प्रॉपर्टी हो सकती है ना, एक रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी हो सकती है. बट विद देम वी कैन ओनली फॉर्म कंजक्चर. तो इसके साथ हम सिर्फ कंजक्चर बोल सकते हैं इसको, है ना. दैट इज कंजक्चर की मीनिंग क्या होती है? स्टेटमेंट अबाउट विच वी आर हाईली कॉन्फिडेंट. हम कॉन्फिडेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बट वी कैन नॉट से दैट इट इज 100% ट्रू, बट नॉट श्योर दैट इट इज ऑलवेज होल्ड्स ट्रू. हम को लगता है ये जरूर सही होगी, हमने उसको काफ़ी वेरीफाई भी किया. हमने 50 रेक्टेंगुलर चीज़ माचिस के डब्बे से लेके
बड़े बड़े हमने बोर्ड्स भी, अपने क्लासरूम के बोर्ड्स को भी, रेक्टेंगुलर बोर्ड्स को भी नाप के प्रूव किया, बुक को भी नाप के प्रूव किया, है ना। लेकिन it cannot be, we can just by measuring we cannot say. For example, constructing a few rectangle and observing through measurement that their diagonal bisect each other does not necessarily mean that they will always be the case, है ना। हो सकता है कि कोई एक ऐसा 1000 रेक्टेंगल जब हम बनाएं, या फिर हो सकता है 9999 रेक्टेंगल पे तो अपना ऑब्जर्वेशन सही रहा, लेकिन 1000 जब रेक्टेंगल बनाया तो हमारा मतलब we cannot be sure. We will construct and you will find this property. The only way we have to sure of this property is by justifying or proving the statement. तो हम श्योर तभी बोल सकते हैं उसको जब तक हम उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, प्रूव नहीं करेंगे। जैसे ऊपर हम लोगों ने प्रूव किया, है ना, ऊपर हम लोगों ने डिडक्शन डिड्यूस किया, है ना, डिड्यूस करके हमने दिखाया। है ना, इस केस में हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डिड्यूस करके दिखाया, इस केस में हम लोगों ने लेंथ को डिड्यूस करके दिखाया। तो बाई आवर ज्योमेट्रिकल रीजनिंग, जो हमें कुछ कंजक्चर कॉन्ग्रुएंस की हमें प्रॉपर्टी पता थी, हमें जो हमें पहले से हमने जो प्रूव हम कर चुके हैं उसके बेसिस पे हमने उसको प्रूव करके दिखाया। तो दैट इज गोइंग टू बी said as proof. The Carpenter problem shows that rectangle can also be defined as, तो Carpenter problem ने हमें क्या दिखाया कि rectangle को हम और कैसे define कर सकते हैं। A rectangle is a quadrilateral whose diagonals are equal and bisect each other. Observe how this definition is different from our earlier one. Yet both capture same class of quadrilateral. Further, it turned out that the definition can be simplified, है ना। तो definition पहले हम लोगों ने, हमें rectangle का definition क्या बताया गया था, क्या हमें पता था कि ऐसा quadrilateral होता है जिसका opposite side equal होता है और all angles are 90 डिग्री। लेकिन हम लोगों ने एक नया मेथड सीखा कि हम रेक्टेंगल को दूसरे कैसे तरीके से बता सकते हैं। तो दूसरे तरीके से ऐसे बता सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल्स इक्वल हो और डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करे। ये हम लोगों ने कारपेंटर प्रॉब्लम से सीखा, है ना। In earlier definition we stated that a rectangle has opposite sides equal. पहले जो डेफिनेशन हम जानते थे रेक्टेंगल का, ये जानते थे कि उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड इक्वल होता है और उसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। Would we be wrong if we just define a rectangle as quadrilateral in which all angle are 90 degree? तो क्या हम wrong होंगे अगर हम बोले कि रेक्टेंगल एक सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका सारा एंगल 90 डिग्री होगा? What do you think? If you think that this definition is incomplete, try constructing a quadrilateral. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये डेफिनेशन सही नहीं है, सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा कि हम बोल दे कि एंगल सारे 90 डिग्री हों। तो try constructing quadrilateral in which angles are 90 degree, all angles are 90 degree but opposite sides are not equal, है ना। तो आप एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाओ, कोशिश करो बनाने की जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री हो लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होंगे। बट आप ऐसा नहीं बना पाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। नाउ let us prove why this is impossible, है ना। so, अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्यों ये इम्पॉसिबल है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल का सारा एंगल 90 डिग्री है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे ही, है ना। तो आप लोग भी सोच के रखो, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चेकआउट करेंगे। Hope you enjoyed this lecture. If you have any comment or any suggestion, please help and please comment.